Good morning, students. Right? Today I am going to teach you the chapter Memories of Childhood. The second part of Memories of Childhood. It was the last lesson of book Vistas, class 12 CBSE. Right? And the chapter, a very easy chapter, but very important for the board examination. The writer of the chapter is Bama. Right? Bama is her pen name. Right? And her original name was Faustina, Bama Faustina Sausaraj. It was her full name, right? And but she used Bama as her pen name. And she is a Tamil Dalit feminist, right? She is still alive, right? Committed teacher and novelist. She rose to fame with her autobiographical novel Karukku, which chronicles the joys and sorrows experienced by Dalit Christian women in India. Right? The story is completely based on untouchability and social evils. Especially, right? Specific, the story is based on untouchability. Right? The narrator Bama, it's her autobiography, right? A part of her autobiography, and she experienced personally what is untouchability, what's the meaning of untouchability in India, right? The lesson Memories of Childhood has two parts. First is related to Jitkala Sa. The subtitle of first part is The Cutting of My Long Hair, and the subtitle of the second part is We Too Are Human Beings. I am going to teach you the second part, right? And the chapter presents autobiographical episodes from the lives of two women from magnified communities who look back on their childhood, right? And reflect on their relationship with the mainstream culture, what they feel, what they experience, right? The second, Bama is the pen name of a Tamil Dalit, as I have told you, right? And woman from a Roman Catholic family. She is Roman Catholic family. She belongs to Roman Catholic family. She had published three main works: an autobiography, right? Title is Karukku in 1992, a novel Sangati 1994, and collection of short stories, right? Kusumbhu Karan in 1996. The following extract has been taken from Karukku, right? From her autobiography. Karukku means palmyra leaves, which with their serrated edges on the both sides are like double-edged swords. It's like double-edged swords. By a fallacious spun, the Tamil word Karukku, containing the word Karu, embroideries or seed, also means freshness and newness. Right? It's about the lesson. It's about the chapter. Now, let us start with the main story. Right? The narrator remembers about her adventures during childhood when she was in third standard. Right? When she used to take half an hour to 1 hour to walk back home from school. Early morning when she went to school from her home, right, she took only 10 minutes. जब जाती थी मॉर्निंग में केवल 10 मिनट लेती थी, राइट? जब वापस आती थी तो लगभग 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में टाइम पीरियड लेती थी. एज यूजुअल जैसे आप लोग करते हो कि मॉर्निंग में जल्दी होती पहुंचना है, वो लौटने टाइम आपके पास टाइम होता है और आप रास्ते के बहुत सारी चीजों को देखते हुए, रुकते हुए, फ्रेंड से बात करते हुए टाइम स्पेंड करते हुए आते हो. सेम विद द बामा, राइट? जैसा मैंने बताया, बामा इनका पेन नेम है, ठीक है? और फॉस्टिना सोराइजी इनका जो है पूरा नेम था, ठीक है? और ये तमिल दलित है और अनटचबिलिटी पर ये पूरी कहानी है. तो शी टुक अप्रॉक्स हाफ एन आवर टू 1 hour
when she came back from his school to home. Actually, the distance could be easily covered in 10 minutes, right? As I have told you, she watched all the fun, games, novelties, and shops on the way, which were available there, right? She enjoyed the monkeys' antics, saw a snake displayed by a snake charmer, and a cyclist who kept pedaling for 3 days. The narrator witnessed a variety of other interesting things on the way. Mariata Temple, Pongal, right? And Gandhi's stories. Beside the statue of Gandhi, there was a stall of fried fish. गांधी का स्टेचू था, उसके बगल में फ्राइड फिश बिकती थी. मंकी का जो है जगलिंग देखती थी, खेल देखती थी, जो होते थे. स्नेक चार्मर होते थे सपेरे, उनको देखती थी. एक व्यक्ति जो 3 दिन से लगातार साइकिल चला रहा था, रात में रुकता था, उसके शर्ट्स में पिनअप थे नोट, उनको देखती थी. सारा चीजें देखती थी, पूरा मार्केट देखती थी. मार्केट में जो शॉप्स थी स्वीट की, ठीक, वो सारी चीजें देखती थी. जो वेजिटेबल्स की शॉप्स थी उनको देखती थी. पूरी तरह एंजॉय करती हुई आती थी. और कभी कभी वेराइटीज ऑफ चीजें होती थी जो अकेजनल होती थी, हमेशा नहीं. पॉलिटिशियंस आते थे, दे डिलीवर दियर स्पीच राइट थ्रू आउट द माइक, वो देखती थी. ठीक है, स्ट्रीट प्लेस देखती थी, पपेट शोज देखती थी, स्टंट परफॉर्मेंस देखती थी. ये अकेजनल होते थे वहां पर. अब तो पपेट शो हम लोगों को देखने को नहीं मिलता, बट इफ यू वांट टू एंजॉय इट यू शुड गो टू राजस्थान. The narrator liked to see the coffee club on the way. Coffee club था and the waiter's act of cooling the coffee. टम्बलर को हाई करके ले जाते थे, जो चीनी मिट्टी का बना वो बर्तन हाई, हाँ तब कॉफी मशीन्स नहीं थी, ऊपर करके ले जाते थे. उससे दूसरे जो है टम्बलर को जो अपने दूसरे हाथ में रखते थे उस पे डालते थे. जैसे आपने देखा होगा कि अभी भी बहुत सारे होटल वाले जो दूध बेचते हैं, ऑफर करते हैं गर्म दूध, वो इसी तरह से दूध को ठंडा करते हैं. ऊपर से एक हाथ से डालते हैं, फिर दूसरे हाथ से डालते हैं, जैसे झाग बनती है. तो उस चीज को देखती थी, राइट. एंड द अनियन बीइंग चॉप्ड, अनियन को चॉप करने वाले व्यक्ति को देखती थी, जो कि अनियन पे कंसंट्रेट ही नहीं करता था, बिना देखे हुए इधर उधर देखता था और चॉप करता था. इट वाज देयर हैबिट्स, उनकी आदत थी. ऐसा कुछ नहीं था कि वो कोई एक्ट कर रहे हों, राइट. शी आल्सो ऑब्जर्व द almond trees, their foreign fruit. The market was full of seasonal fruits, vegetables, people selling delicious snacks, all these things she enjoyed. Because of that she spent approximately 30 to 1 hour when she came back from school to home. इसलिए इसको टाइम लगता था. एक दिन वो चली आ रही थी और अचानक एक इवेंट हुई, एक इंसिडेंट उसने देखा. बिगिनिंग में उसको ये इंसिडेंट बड़ा जो है मोकरी टाइप लगा, एक फनी लगा, लेकिन आफ्टर उसके बाद जो हुई, उस जो घटना हुई उसके भाई ने बताया, वो यहाँ पर बेस है इस कहानी का. One day the narrator saw a landlord sitting on a raised platform. She saw him supervising the proceeding of the people of her caste, who were driving the cattle round and round to remove grain from the straw. She also saw that the animals had been muzzled so that they don't eat the straw. This seemed to be a funny sight and the narrator stood there watching it. वो चली आ रही थी, उसने देखा कि एक जगह एक लैंड थी, वहां पर लैंडलॉर्ड ऊपर हाई एज स्टोन में बैठा हुआ था, राइट. और वो सारी चीज सुपरवाइज कर रहा था. और उसकी बामा के कास्ट के दलित लोग जो थे, राइट, जो तमिल उस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे थे दलित लोग, वो वहां पर कैटल को राउंड राउंड घुमा रहे थे. और क्या कर रहे थे कि स्ट्रा से ग्रेन निकाल रहे थे. ऑक्स का पेयर रहा होगा और उन पेयर को मजल्ड किया गया था, उन एनिमल्स को, मतलब मुस्का लगाया गया था कि वो ग्रेन ना खा सके. और राउंड राउंड करने से पुराने जमाने में इसी तरीके से ग्रेन निकाला जाता था. ठीक है, आज से 10-20 साल पहले आप अपने जो है फोर फादर्स लोगों से पूछ सकते हैं, वो बताएंगे आपको, फादर लोग बताएंगे. तो इस तरीके से निकाल रहे थे और वो सुपरवाइज कर रहा था, लैंडलॉर्ड बैठा हुआ. ठीक है, ये उसने देखा, ये थोड़ा फनी उसको लग रहा था. सडनली सी नोटिस्ड, एक चीज और देखी, द एल्डर विद अ स्मॉल पॉकेट चला आ रहा था. द एल्डर ऑफ हर स्ट्रीट, उसकी गली का एक बुजुर्ग व्यक्ति, उसकी कम्युनिटी का, उसकी कास्ट का बुजुर्ग व्यक्ति. गांव में सिस्टम होता था, आज भी है, आप देखेंगे कि एक कास्ट के लोग एक ही गली में रहते हैं, लगभग अप्रॉक्स. ये विलेज का एक सिस्टम था और गली के नाम से ये समझ जाया जाता था कि किस कास्ट के लोग इस गली में रहते हैं, स्ट्रीट में रहते हैं. तो एक एल्डर पर्सन उसकी गली का, ठीक है, चला आ रहा था. द नरेटर नोटिस्ड एन एल्डर ऑफ द स्ट्रीट, ही कैरीड अ स्मॉल पॉकेट ऑफ वदाई और ग्रीन बनाना भाजी.
एक स्मॉल पॉकेट एक स्ट्रिंग से पकड़ के ला रहा था और काफी बुजुर्ग था, थोड़ा स्टूप झुका हुआ था, लेकिन वो जो पार्सल पकड़े था वो काफी दूर पकड़े था कि वो पार्सल कैसे भी उसकी बॉडी टच ना हो, स्ट्रिंग से पकड़े था। और मोस्ट प्रोबेबली वो स्ट्रिंग जो है कॉटन की होगी, सूत की होगी, क्योंकि उसको हमारे हिंदू रिलीजन में छूत में नहीं माना जाता कि उसको टच करने से कुछ कास्टिज का जो अनटचबिलिटी वाला चीज वो नहीं होगी। तो वो उसको पकड़ के लाग रहा था और वो मे बी वदाई था, कोई दाल की बनी हुई चीज थी या बनाना भाजी था, क्योंकि जो बाहरी रैपिंग पेपर था उसमें ऑयल बहुत चीज लगा हुआ था, राइट। होल्डिंग इट विद अ स्ट्रिंग ही वॉक्ड इन अ सच स्ट्रेंज मैनर दैट द नरेटर फेल्ट लाइक लाफिंग। ऐसे पकड़े था कि उसको देखकर उसको बड़ी हंसी आ रही थी कि इतना बड़ा व्यक्ति इतने छोटे पार्सल को ऐसे पकड़े, सही से कप कर ले, ठीक है, होल्ड कर ले, अदरवाइज ये स्ट्रिंग टूट जाएगी, नीचे गिर जाएगा, बेकार हो जाएगा। She didn't know the actual reason behind it. उसको actual reason नहीं पता था। He carried the packet by its string without touching it. The elder bowed while handling over the packet to the landlord. The landlord opened the packet and ate the vadai. वो गया सीधे उसने लैंडलॉर्ड को दिया। लैंडलॉर्ड ने नीचे अपना कप हैंड किया, उसमें उसने छोड़ दिया, टच नहीं किया। लैंडलॉर्ड ने उसको रिसीव करते ही निकाल करके वो सीधे ईट करने लगा, अपने आप को फीड करने लगा, अपने मुंह में भरने लगा। एंड ही डिडंट आस्क राइट टू द एल्डर पर्सन ऑफ बामाज स्ट्रीट। बामा स्ट्रीट का जो एल्डर पर्सन था जो लेके आया था, उसने उससे न कुछ पूछा, जो है लैंडलॉर्ड ने ना ऑफर किया, कुछ नहीं किया। तो उसको थोड़ा ऑड लगा बामा को, बट फॉर हर इट वॉज अ फनी मोमेंट। इसके लिए एक फनी मोमेंट था। बट सी व्हेन सी केम बैक टू होम हर elder brother right came from Bangalore where he studied, right. Narrator told to all the event to her elder brother Anand. The Anand लिखा है ANNAN but its pronunciation actual अन्ना, right. अन्ना जो बड़े लोग होते हैं, बड़े भाई लोग होते हैं, उनको साउथ में अन्ना कहा जाता है। तो अनन यहाँ स्पेलिंग है और अन्ना वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन आप करिए। अबाउट द इंसिडेंट अनन टोल्ड हर दैट द लैंडलॉर्ड बिलोंग टू एन अपर कास्ट एंड द एल्डर बिलोंग टू अ लोअर कास्ट। द अपर कास्ट पीपल बिलीव दैट if the lower caste people touch them on their articles, their articles would become polluted. Main point. So the elder carried the vadai by holding the packet of vadais by a string. The narrator felt really sad on hearing it. उसने बताया कि जो लैंडलॉर्ड है वो सपोज करते हैं कि वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, और जो हम लोग हैं, दलित लोग हैं, ये वो सपोज करते हैं कि हम लोग लोअर कास्ट के हैं, और यदि हम उनकी कोई चीज छू लेंगे तो उसमें छूत लग जाएगा, वो जो है खाने योग्य नहीं रहेगा, यूज करने लायक नहीं रहेगी। बिकॉज ऑफ दैट द एल्डर पर्सन होल्ड द पार्सल इन सच मैनर। उसने कहा इस वजह से इस पार्सल को इस तरीके से उस एल्डर पर्सन ने होल्ड किया था कि टच ना हो सके उसकी बॉडी से। जैसे उसने सुना बामा ने तो वो सैड हो गई एंड स्कैर्ड आल्सो, डिस्टर्ब, वो प्रोवोक्ड करना चाह रही थी इस बात को लेकर के, राइट, बिल्कुल रिवोल्ट हो गई, विद्रोही। एंड सी वांटेड दैट द एल्डर पर्सन ऑफ हर स्ट्रीट वेंट देयर टू वर्क इन द फील्ड ऑफ लैंडलॉर्ड्स बट नॉट एट दिस टाइप ऑफ ऑडीज, दिस टाइप ऑफ ऑड वर्क्स। उसने सोचा कि यदि ऐसा है तो हमारे एल्डर पर्सन केवल खेतों में काम करके अपना वेजेज लेके क्यों नहीं आ जाते, उन अपर कास्ट के लोगों के दूसरे ऑड वर्क क्यों करते हैं इस तरीके से। और बिल्कुल रिवोल्ट, विद्रोही हो गई, वो अपोज करना चाहती थी। She wondered how the vadai would be polluted when it was the first wrapped in a banana leaf and then packed in paper. She felt provoked and angry. The mere thought of it infuriated her. She really distressed the idea of the people of her caste doing petty errands for the upper caste people. बिल्कुल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई, गुस्से से भर गई कि कैसे सोचा जा सकता कि एक वदाई जो कि पहले बनाना की लीफ में जो है कवर है, फिर रैपिंग पेपर से कवर किया गया है, उसको ये छू लिया जाए ऊपर से पेपर से, तो वो किस तरीके से जो है पॉल्यूटेड हो जाएगी। द स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी दैट ही स्टडीड एट यूनिवर्सिटी वंस अपॉन अ टाइम ही वेंट टू द नेबरिंग विलेज to borrow the books to read the books because there was a library. When he came back from there, man, right, landlord man asked him to his name.
he told his name, but he wanted to know the name of the street on which he lived. Why? He wanted the name of the street so that he might know his caste. ब्रदर ने उसके बताया, अनंत ने, कि एक बार नेबरिंग विलेज में जहाँ पे लाइब्रेरी था वो गया बुक्स पढ़ने के लिए। वहां से जब वो लौट रहा था तो जो इरिगेशन टैंक था, सिंचाई का टैंक था लैंडलॉर्ड के, उसके बगल से आ रहा था। सडनली तभी लैंडलॉर्ड का एक व्यक्ति आया, उसने उससे नाम पूछा और ही टोल्ड हिज नेम, उसने अपना नाम अनंत बताया, लेकिन नाम से कास्ट क्लियर नहीं हुई। तो उसने फर्दर उससे पूछा आगे कि तुम किस स्ट्रीट में रहते हो, क्यों, ताकि वो स्ट्रीट से जान सके, जैसा कि मैंने बताया, कि उसकी कास्ट क्या है। और इफ ही टोल्ड माइट बी, यदि वो टोल्ड करता, बताता, तो शायद उसको जो है टॉर्चर किया जाता, उसको बीटन किया जाता था कि हाउ डेयर ही टू वॉक बिसाइड द इरिगेशन टैंक ऑफ लैंडलॉर्ड, कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि लैंडलॉर्ड के इरिगेशन टैंक के बगल से वो जो है निकल रहा है। सो लास्ट फेज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इस फेज से आता है। अनंत एडवाइज्ड टू बामा, राइट, to study hard, right, so that he might get the reputation, he might get the respect and put off the humiliation of the society, कि वो जो इंसल्टिंग कंडीशन है उसको तभी उतार के फेंक सकती है, वो रिस्पेक्ट ये पाना चाहती है और इस इंसल्टिंग कंडीशन से, इस इंसल्ट से बाहर आना चाहती है, तो उसे स्टडी हार्ड, बहुत कठिन मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओनली नॉलेज एंड स्टडी make her position better in the on the सोसाइटी पर उसकी जो पोजीशन है वो तभी बेटर हो पाएगी जब वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करेगी, स्टडी हार्ड करेगी, नॉलेजेबल होगी। And is in the advice made a great impression, made a impression on the mind of Bama, and Baba studied hard and she stood first in third standard, right? And when she stood first, many other students came forward to be the friend of her. जब उसने बहुत कठिन मेहनत की, अपने भाई के एडवाइस को बिल्कुल माना, और जब कठिन परिश्रम किया तो वो क्लास में उसने फर्स्ट पोजीशन गेन की, और उसके बाद जो दूसरे बॉयज थे, अपर कास्ट के बॉयज और गर्ल्स थे, स्टूडेंट्स थे, वो आगे आए और वो सब के सब उसके फ्रेंड्स बने। बहुत सारे लोग उसके फ्रेंड्स बने और उसको जो ह्यूमिलिटेशन होती थी, इंसल्टिंग कंडीशन थी, उससे वो उबर सकी। इस कहानी को इसी सबक की वजह से, और एक ये सबक लास्ट में दिया गया कि स्टडी कैन चेंज योर कंडीशन, पोजीशन इन द सोसाइटी, कि एक स्टडी है, जो नॉलेज है, वो आपकी पोजीशन को इस सोसाइटी में चेंज कर सकती है। और इस चीज को शायद आप लोग भी समझेंगे। एंड इट्स एडवाइस फ्रॉम माई साइड फॉर यू ऑल्सो टू स्टडी हार्ड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।